हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट इज़ रीडिंग सेक्शन। एक पैसेज आपको गिवन है, रीड करना है और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो स्टूडेंट्स टेंड टू लूज देयर पेंसिल्स, break them without thinking, and find all sorts of non-writing uses for them. The pencil in your hand is one of the most remarkable and useful tools in the world. A man named Friedrich Stedler invented the modern lead pencil in about 1622 in Germany. He was the first person to produce them on such a large scale. Stedler did not use lead, and there is no lead in your pencil. However, some pencils did use lead until the early 20th century. Lead will make a mark, but it is toxic and not safe to use either in the hands or around the face and mouth, where many pencils sometimes stray. Stedler used black graphite, a soft form of carbon. Graphite is still used today. It is mixed with clay and wax and heated to high temperature. The modern pencil is a superb piece of technology. The pencil is less messy than ink, can be easily erased, and made clear, dark, smooth, and smudge-free lines. The modern pencil can produce a continuous line 22 miles long. That's a distance of 1,16,160 foot long ruler laid end to end. Enjoy your pencil. For a few rupees each, it is a remarkable bargain. Okay, now first question is, the modern lead pencil was invented by, so it was invented by Friedrich Stedler. Sorry, invented in. तो इन्वेंट हुई थी ये इन जर्मनी. नेक्स्ट इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स पॉइजनस. पॉइजनस का मतलब होता है टॉक्सिक. द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंशिएंट, एंशिएंट मतलब पुराना, इसका एंटोनिम ऑपोजिट होगा मॉडर्न. व्हाट डिड स्टेडलर यूज टू मेक पेंसिल. स्टेडलर ने क्या यूज़ किया पेंसिल बनाने के लिए. सो ही यूज्ड ब्लैक ग्रेफाइट. हाउ लॉन्ग लाइन्स कैन अ पेंसिल ड्रॉ. एक पेंसिल कितनी लंबी लाइन ड्रॉ कर सकती है. तो मॉडर्न पेंसिल, अ पेंसिल कैन ड्रॉ अ कॉन्टीन्यूस लाइन ऑफ 22 माइल्स लॉन्ग, जो कि 1,16,160 फुट लॉन्ग होगी अगर हम रूलर को लेकर एंड टू एंड. नेम टू थिंग्स ग्रेफाइट मेड ऑफ. सो ग्रेफाइट, फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, मेड ऑफ तो नहीं होना चाहिए, इट इज़ मिक्सड विद. टू थिंग्स इट इज़ मिक्सड विद. क्ले और वैक्स के साथ ये मिक्स होता है. ओके, क्ले एंड वैक्स मिक्सड विद. नेक्स्ट, now एक और पैसेज है. रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. When I came home from the hostel for the first time, I was looking quite depressed and pale. I had lost interest in food, and this naturally showed in my face, in my dull face and shrunken eyes. But after the vacation, when I set off for the hostel, there was a servant walking along with me with a huge tin of homemade ghee and a large sack of super fine rice. His name was Hari, and he had brought it from his home. He was very particular about his food. He began to cook my food separately in the hostel. Day by day, I grew pink and strong. I generally survived on rice and slept a lot. Once I slept for 36 hours at a stretch. Having a short nap after the breakfast became my hobby. For that, I used to miss my lunch too. Okay, now questions. How did the narrator look when he returned home from hostel? Hostel से जब वो वापस आया तो कैसा दिख रहा था. बिल्कुल pale and depressed. So, depressed. The narrator had lost interest in, he had lost interest in food. Food, और इसी वजह से dull face और shrunken eyes हो गई थी. When whose company did the narrator find in hostel after vacation? Vacation के बाद किसकी कंपनी थी, कौन उसके साथ गया था. A servant. What did the narrator bring with him to hostel? Hostel वो अपने साथ क्या लेकर गया था. एक सर्वेंट था जिसके पास एक ह्यूज टिन ऑफ होममेड घी, घर का बना हुआ घी था, और एक लार्ज सैक ऑफ सुपर फाइन राइस थे. सो अ टिन ऑफ होममेड घी एंड अ लार्ज सैक ऑफ राइस, बोथ ए एंड बी. आई स्लेप्ट फॉर 36 आवर्स एट अ स्ट्रेच. वॉट डज एट अ स्ट्रेच मीन्स. एट अ स्ट्रेच मतलब कॉन्टीन्यूसली, लगातार. वॉट बिकेम द नरेटर्स हॉबी. नरेटर की क्या हॉबी बन गई थी. उसकी हॉबी थी दैट हॉबी having a short nap after the breakfast became his hobby.
नेक्स्ट, नाउ राइटिंग सेक्शन. यू आर अद्विक और निधि ऑफ DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर. यू हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच. रिस्ट वॉच आपको मिली है स्कूल कैंपस में. नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है टू बी पेस्टेड ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द सेम. यू आर इन चार्ज ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट. इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स. ओके, सो इस तरीके से आप नोटिस लिखेंगे. एक तो ये हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है. टॉप सेंटर स्कूल का नाम DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर. देन कैपिटल लेटर्स में नीचे नोटिस. लेफ्ट साइड डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं. देन टॉपिक रिस्ट वॉच फाउंड. इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स दैट आई हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द लंच ब्रेक. लंच ब्रेक में मुझे स्कूल में एक रिस्ट वॉच मिली है. इट इज़ अ टाइटन वॉच. थोड़ा सा आपको डिटेल बतानी है. टाइटन वॉच है. द स्ट्रैप ऑफ द वॉच इज़ रेड. स्ट्रैप रेड है. एनीबडी हु हैज़ लॉस्ट द वॉच कैन मीट मी ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड. जिसकी भी वॉच खो गई है अगर, तो वो मुझसे रिसेस पीरियड में मिल ले. आपका नाम इंचार्ज ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज यू आर सैंडी और ममता, अ स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भटिंडा. यू हैव फीवर एंड कोल्ड. राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर विद्यालय आस्किंग फॉर 2 days लीव. 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको आपके स्कूल प्रिंसिपल को लेटर लिखना है. नाम आपका दिया है. सो द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय, आपके स्कूल का नाम, डेट, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन सर और मैडम. विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड सिंस लास्ट नाइट. लास्ट नाइट से मैं फीवर और कोल्ड से सफ़र कर रहा हूँ. डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक 2 days रेस्ट. डॉक्टर ने एडवाइस किया 2 दिन रेस्ट लेने के लिए. सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर नेक्स्ट 2 days. तो अगले 2 दिन मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा. ब्रैकेट में मेंशन करेंगे वो कौन से 2 दिन है. 10th and 11th of July, नेक्स्ट 2 days. काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव. आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड. थैंकिंग यू. योर्स ओबीडियंटली. आपका नाम और क्लास. ओके, नेक्स्ट इज ग्रामर सेक्शन. इसमें रीअरेंज करना है जंबल वर्ड्स को टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. विराट अ फेमस कोहली क्रिकेटर इज. विराट कोहली इज अ फेमस cricketer. India, he won or has prizes lot for. He has won a lot of prizes for India. Fill in the blanks. There blank 40 students in my class. There are 40 students in my class. There is an elephant in the zoo. Choose the correct option. Blank Ganga is blank holy river. The Ganga is a holy river. They went to Jaipur by bus. The frog jumped into the river. क्योंकि वो मूवमेंट शो कर रहा है, सो into. A blank of fish, a school of fish. और नेक्स्ट इज लिटरेचर. ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं. So read the given passage carefully and answer the questions that follow. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. Question is, who was the lady? वो लेडी उनकी नेबर थी, so Taro's neighbor. Who gave sake to Taro? Taro को साके कहाँ से मिला था? He bought it from the market. उसको वो मिला था वाटरफॉल से. So waterfall gave him sake. Write the name of the chapter from which the extract has been taken. ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. चैप्टर का नाम है Taro's Reward. नेक्स्ट इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टेस्टी और यमी. इसके लिए वर्ड है डिलीशियस. नेक्स्ट रीड द गिवन स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर. आई डोंट नो वॉट अबाउट. वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. Who is I in the poem? ये द क्वेरल पोएम है. आई जो नरेटर है उनका नाम है एलियनोर फारजियन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. राइम स्कीम ब्रदर ए. अबाउट इससे राइम नहीं करता, सो बी. ब्रदर अनदर. आउट अबाउट. ए बी. देन स्लाइट दोनों से ही राइम नहीं करता है, सी. स्ट्रॉन्ग भी किसी से नहीं करता, डी. स्लाइट राइट राइम करते हैं, सी अगेन. एंड रॉन्ग स्ट्रॉन्ग राइम करते हैं, सो डी. ए बी सी डी ये इसकी राइम स्कीम है. ए बी एंड सी डी. बी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट द नेम ऑफ द पोएम. पोएम का नाम है द क्वेरल.
नेक्स्ट इज हाउ वॉज द स्टार्ट ऑफ द क्वेरल. स्टार्ट was of it was light. So start was light. Answer any 8 of the following questions. Out of 10 किन्हीं 8 को आंसर करना है. Who did the dog finally choose as his master and why? किसको फाइनली डॉग ने चूज़ किया एज हिज मास्टर और क्यों? तो डॉग ने फाइनली चूज़ किया था ह्यूमंस को. द डॉग फाइनली चोज ह्यूमंस एज हिज मास्टर. और रीज़न क्या था? क्योंकि उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हो अर्थ पर वैसा मास्टर चाहिए था और लायन भी ह्यूमन से डरता था. सो ही चोज ह्यूमंस बिकॉज इवन द लायन was scared of the man and the dog wanted someone who was stronger than anyone on the earth. Next is how did Taro's father show his happiness after drinking sake? साके पीने के बाद किस तरीके से टैरो के फादर ने अपनी हैप्पीनेस को शो किया? पहले जो वो शिविर कर रहे थे ठंड की वजह से, एक तो वो शिवरिंग बंद हो गई और दूसरा वो डांस करने लगे. सो टैरोज फादर शोड हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके एज ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड स्टार्टेड dancing. नेक्स्ट इज वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो? एम्परर ने टैरो को क्यों रिवॉर्ड किया? क्योंकि टैरो एक गुड सन था, अपने पेरेंट्स को ओबे करता था और एम्परर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे. वो जो दूसरे बच्चे हैं उनको एनकरेज करना चाहते थे कि वो भी टैरो की तरह बने, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करें, उनको सर्व करें. सो द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो फॉर बीइंग गुड and kind towards his parents. And this was emperor's way, या फिर this way the emperor wanted to encourage all children, other children, to respect, obey and serve their parents. Next. Now what abilities must an astronaut have according to the journalist? जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोनॉट में क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? तो जर्नलिस्ट ने बताया कि एस्ट्रोनॉट को हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसमें बहुत एनॉर्मस एबिलिटीज़ और नॉलेज हो. सो अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट एन एस्ट्रोनॉट मस्ट नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू astrophysics to aeronautical engineering. So according to him, he or she should have enormous ability. Next, why did the two birds get separated? How did the two baby birds get separated? दोनों baby birds कैसे separate हो गई थी? क्योंकि एक बहुत टेरेबल थंडरस्टॉर्म आया था जिसकी वजह से वो उड़कर एक फॉरेस्ट के अलग साइड पर चली गई थी, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द फॉरेस्ट. सो द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. एंड हाउ? ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म या फिर स्टॉर्म, द टू बेबी बर्ड्स वर ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग winds to the other sides of the forest and both fell at different places. एक रॉबर्ट्स केव के बाहर चली गई थी और एक जो ऋषि थे उसके आश्रम के बाहर जाकर रहने लगी थी.
नेक्स्ट इज वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज। फार्मर की वाइफ अपने बेबी को मंगूज के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि मंगूज उस टाइम तक फुल ग्रोन एनिमल हो गया था और उसको लगता था कि शायद वो उसके बेबी को हर्ट कर देगा. सो द फार्मर्स वाइफ डिडंट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज बिकॉज द mongoose was a full grown animal and she was afraid that it would hurt the baby. Next. Now who visited the shepherd one day and why? कौन मिलने आया था शेफर्ड से एक दिन? किंग उससे मिलने आए थे. और क्यों? क्योंकि किंग ने उसकी विजडम और फ्रेंडलीनेस के बारे में बहुत कुछ सुना था. सो द किंग विजिटेड द शेफर्ड वन डे because he heard a lot about the wisdom and friendliness of the shepherd. Next is how did the king reward the new governor? न्यू गवर्नर को कैसे रिवॉर्ड किया? किंग ने उसको प्रमोशन दिया. ही रिवॉर्डेड हिम. द किंग रिवॉर्डेड द न्यू गवर्नर विद अ प्रमोशन और उसको एक बिगर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. ही मेड him the governor of a much bigger district. Next. Now what did Patrick think the cat was playing with? पैट्रिक को क्या लगा कैट किसके साथ खेल रही है? एंड वॉट वॉज इट रियली में वो क्या था? उसको लगा वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है. सो पैट्रिक थॉट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट एक्चुअली इन रियली इट वॉज एन एल्फ. एक्चुअली में वो एक एल्फ था, एक लिटिल मैन था. डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस. फर्स्ट मिशन स्पेस में कल्पना चावला का डिस्क्राइब करना है. सो इट वॉज इन कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन space was in the space shuttle Columbia. और वो 16 डेज तक उसमें अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाती रही थी. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी उन्होंने किए. एंड इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 16 days long, जिसमें अराउंड 252 टाइम्स उन्होंने शी वेंट अराउंड द अर्थ, चक्कर लगाए थे अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. एंड दे परफॉर्म. उनके कलीग्स भी थे, कुछ जापानीज़ थे, यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स थे उनके साथ. एंड दे परफॉर्म्ड मैनी एक्सपेरिमेंट्स. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे स्पेस में. नेक्स्ट. नाउ आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? लिटिल मैन एल्फ ने या फिर खुद पैट्रिक ने? और गिव रीज़न फॉर योर आंसर. होमवर्क भले ही पैट्रिक को लगा कि एल्फ ने किया, लेकिन एक्चुअली में पैट्रिक ने खुद ही किया था. सो इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल हिज होमवर्क. और कैसे? ही बिकॉज ही हैड टू help the elf again and again. हर कोई भी काम उसको देता था, कुछ न कुछ गाइडेंस जो एल्फ है वो उससे लेता था कि मार्क्स ये मुझे नहीं आता सब्जेक्ट, तो वो उसे पढ़ के बताता था अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स. ओके. नेक्स्ट. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? दोनों बर्ड्स ने बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव किया, तो उस बिहेवियर को ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया?
ऋषि ने बताया था कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जिस कंपनी में आप रहते हैं उससे ही आप जाने जाते हैं. सो द ऋषि टोल्ड दैट वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. ही एक्सप्लेन दैट, क्योंकि जो दो बर्ड्स थी, ही एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ रॉबर्स. उसने रॉबर्स के ही वर्ड्स रिपीट किए क्योंकि उसने वही सुने हैं उस केव के बाहर. द वर्ड्स ऑफ रॉबर्स एज he or she, as the bird has always heard the talks of the robbers, so she imitated them. robbers. और सेकंड जो बर्ड थी उसने वेलकम किया किंग को, क्योंकि उसने वही वर्ड्स रिपीट किए जो उसने ऋषि के यहाँ पर सुने थे, आश्रम में सुने थे. whereas the second bird repeated what he had always heard at the ashram. ओके, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. राइट, हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है. हाउस सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट मटेरियल्स का बना है, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, वुड, आयरन, इन सब से. जबकि होम जो है वो बनता है फैमिली से, उसके मेंबर्स से जो उसमें रहते हैं. सो अ हाउस इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ various materials like stone, bricks and woods, etc. whereas a home is made up of a complete family or the members who live within. Okay, that's all students. ये था 6th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.